Very good afternoon to all of you. I hope you all are doing well. This is Abhilasha Nata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 3 of your history book, that is Nazism and the Rise of Hitler. In our earlier classes, we have discussed about the birth of Weimar Republic, Nazism, Hitler. How did he recover the economy? How did he how did he came in power? How did he became the dictator? So in today's class, basically we will talk about the downfall of Hitler. हाउ डिड ही लाइक ऐसा कौन सा डाउनफॉल था, ठीक है, ऐसा कौन सा टाइम था, ऐसे कौन सी सिचुएशंस थी जिससे कि हिटलर इतना राइज करते हुए जो है डाउनफॉल आ चुका था। और डाउनफॉल के बाद एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हो चुका था एंड एंड एट लास्ट हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। व्हाट आर दोज रीजंस? ओके, so some of World War II and downfall of Hitler. As you all know, World War II is between Allied powers and the Central powers, which we have already discussed. And in World War II, also Allied powers won, right? So Hitler chose war as the way out of the approaching economic crisis. Now, as you all know, Germany was facing a huge economic crisis. Okay, he took some of the he took some of the approaches or things to reconstruct the economy. He also took the help of economist Halmar Shah, okay, and he gave the policy, or you can say he gave the gave some things production, overproduction, and full production and full employment through state funded work creation programs. Okay, he is the economist, but Hitler was like the economy is recovering so slowly, so he wants to recover the economy in a fullest way. So he chose war as the way out of the approaching economic crisis. Now Shah, ठीक है, Hallmark Shah had advised Hitler against investing hugely in rearmament. Okay, okay, जो हालमार शाह थे उन्होंने बोला था कि आप रीअरेंजमेंट में, रियारमेंट में, फुल प्रोडक्शन में, जो मैंने आपको टेक्निक बताई, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। बट हिटलर वॉज नॉट नो मोर अग्री विद शाह, ठीक है, वो हॉलमार्क शाह को बोल रहा था नहीं, अब मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, आपने बहुत एडवाइस कर ली है, आपने जो बोला है उससे ठीक है, रिकवरी हुई है इकोनॉमी की, बट मुझे अब रिकवरी जो है फुली रिकवरी चाहिए। तो ही disagree with Shah. Resources were to be accumulated through the expansion of territory. Now Hitler was in that positions. I want to recover my economy by, or I want to accumulate the resources only through the expansion of territory. I want to expand the territory of Germany. Okay, and this will be happen just through the war. Okay, so in September 1939, just look at this figure, this is the first day, like ऐसा day वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग हुआ था। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक मैप दिखाया था जिसमें मैंने बोला था आपको ये मैप बहुत वर्क करने वाला है। जस्ट लुक, अभी देखते हैं, रुक जाओ। Just look at this map, okay? Germany, this is the map of Germany, and this is Poland. He started to invade, ठीक है, he started to capture the uh, territory of Poland. ओके, अब कब उसने स्टार्ट किया था? ही इन सितंबर 1939। दिस स्टार्टेड ए वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और पोलैंड के साथ जब पोलैंड में इन्वेड करने लगे वो, तो पोलैंड के साथ जब ये वॉर हुआ तो इससे फ्रांस और इंग्लैंड में भी क्या है,
वॉर स्टार्ट हो गया। अब क्यों स्टार्ट हो गया? अब आप याद कीजिए बेटा, ट्रिपिटाइट उन्होंने एक, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है ना, जस्ट लाइक दैट एक ट्रिपिटाइट एक्ट भी था, ट्रिपिटाइट ट्रीटी भी थी, जिसमें इन्होंने इन्होंने वॉर को इन्होंने ना, ये फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, इन्होंने एक साइन किया था, ठीक है, कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री में अगर कोई वॉर करता है तो हम आपके साथ होंगे, हम भी वॉर करेंगे। तो ये ट्रीटी उन्होंने क्या कर दी थी, साइन की थी। तो पोलैंड में जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड करना स्टार्ट किया, वॉर किया, तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उनका वॉर स्टार्ट हो गया था। In September 1940, a tripartite pact was signed between, ठीक है, एक ट्रिपिटाइट पैक्ट साइन हुआ किसके बीच में? देखिए, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में भी हुआ था एक पैक्ट साइन, ठीक है, जिसमें कि अगर किसी भी देश में, अगर इनमें से किसी भी कंट्री में अगर कोई वॉर करता है तो इन कंट्रीज को उसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जब जर्मनी ने पोलैंड में हमला किया या वॉर किया, तो फ्रांस और इंग्लैंड उनके साथ आ गए। सितंबर 1940 में एक ट्रिपिटाइट पैक्ट साइन किया गया, किसके बीच में जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। दे आर द countries of the central powers, ठीक है, they are the countries of the central powers, strengthening Hitler's claim to international power। and ये इससे वो क्या चाहते थे कि हिटलर की जो पावर है, इंटरनेशनल पावर स्ट्रेंथ हो, मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बने इस ट्रिपिटाइट पैक्ट की वजह से, और इसके अंदर यही सारी चीजें मेंशन थी। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large part of Europe, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पपेट रिजाइम्स, ठीक है, कठपुतली होते हैं ना, कठपुतली की तरह जो हिटलर के कहने पे जैसा वो कह रहा है वैसा करना है। तो बहुत से ऐसे पपेट रिजाइम्स बने, ऐसे जो नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते थे, ऐसे बहुत से लोगों को बहुत यूरोप के सर्टेन पार्ट्स में क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया, भेजा गया। And by the end of 1940s, Hitler was at the pinnacle of his power। और 1940 में हिटलर जो था अपनी पावर के पिनेकल, उसको पिनेकल बोला गया, पिनेकल ऑफ हिज पावर, मतलब द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, कल्मिनेशन पॉइंट, मतलब पीक पॉइंट था हिटलर इस टाइम पे 1940 में अपनी पावर में, सबसे पावर में क्या था, पीक पे था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, राइट। So just look at this map also. This is the map of world Europe. Okay. Now just look at this map. September 1, 1939 में जर्मन इन्वेजन कैसा हुआ पोलैंड में। This is जर्मनी। ये देखिए, यहाँ से ये जो एरोज देख रहे हैं ना, ऐसे इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इन्होंने वॉर करना स्टार्ट किया, और ये एरियाज को वो जर्मनी धीरे धीरे क्या करने लग गए, कैप्चर करने लग गए। और ये वाले जो एरियाज हैं वो सारे पोलैंड के उन्होंने इन्वेड कर लिए, ठीक है, अपने अंदर कैप्चर कर लिया। Now Hitler wanted to ensure food supplies and living space for Germans, ठीक है। अब जो है हिटलर चाहता था, ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज, ठीक है, कि जर्मनी में, अब ठीक है, उस टाइम पे जर्मनी में, वहां पे आपको पता है थोड़ा ये आपका यूरोप का जो एरिया है, मोस्टली जो जर्मन, स्वीडन, ये वाला पोलैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो स्प्रिंग के टाइम पे तो उन्होंने जब लड़ाई कर रहे थे, सिपाही वगैरह जो ऐसे यूनिट्स थी या आर्मी थी या डिफेंस यूनिट थी, वो आराम से काम कर पा रहे थे। बट अब जैसे जैसे वॉर बढ़ने लगा, ठीक है, वॉर बढ़ने लगा और जो आर्मी है वो इंक्रीज होने लगी, वैसे वैसे अब फूड सप्लाईज की भी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी, लिविंग स्पेसेस की भी डिमांड होने लगी। तो हिटलर चाहते थे ये सारी चीजें हों, बट ये सारी चीजें वो, क्योंकि आप सबको पता है जर्मनी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, और जो यूएस लोन दे रहा था वो भी उससे वापस करना था, वो भी वो दे रहा था। तो सारा का सारा पैसा वो कहाँ लगा रहा था, वो आर्मी में लगा रहा था। अब आर्मी में ऐसा तो नहीं है ना बिना पैसे काम चल जाएगा, पैसे भी तो चाहिए। पर अब फूड सप्लाईज कम हो रही थी, लिविंग स्पेस कम हो रहा था, तो हिटलर चाहता था कि जर्मन्स के लिए लिविंग स्पेस और फूड सप्लाईज जो है वो हो।
बट जर्मनी ने जो है ये सारी चीजें हिटलर को नहीं मिल पाई, बट हिटलर फिर भी उसने वॉर को नहीं रोका। वो पोलैंड की, फिर चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ये वाले एरिया भी उसने अपने अंडर कैप्चर कर लिए। जस्ट लुक एट दिस, ये यूएसएसआर, जैसे कि आप ये बोल सकते हो सोवियत यूनियन की कैप्चर की हुई एरियाज थे, और ये ग्रीन एरिया जो आप बोल रहे हो वो जर्मनी का एरिया था। तो हिज मेन ऑब्जेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि वो सोवियत यूनियन को जो है कैप्चर करे। एंड द एरोज यू आर लुकिंग एट, एंड ये जो डिसीजन उसने लिया कि हम, मुझे रशिया में क्या करना है, अटैक करना है, तो 19 जून 1941 में जब ये उसने सोवियत यूनियन में अटैक किया था, दिस टाइम इज कंसिडर्ड एज द डाउनफॉल ऑफ नाजी पीरियड। ठीक है, यहाँ से नाजी पीरियड्स की डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, और ऐसा बोला जाता है हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया था हिटलर ने। ठीक है, अब वॉर भी जो है, आप जब मैप को देखते हो, ये देखिए ये वाले जो एरोज आप देख रहे हो, ये वाले थे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन बारबरोसा। ठीक है, ये उनका ऑपरेशन बारबरोसा था। ये ऑब्जेक्टिव था कि मुझे ये मेन सिटीज जो है, हिटलर ने बोला कि मुझे ये कैप्चर करनी है। तो ये इंक्रीज होते जा रही थी, हिटलर कैप्चर कर पा रहा था। बट जब सोवियत यूनियन 1941 में उसने ये ब्लंडर किया था, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको कंसिडर किया जाता है कि डाउनफॉल आ गया था नाजी पीरियड में। अब वो जो वॉर थे, वॉर ऑन टू फ्रंट्स, दो फ्रंट्स पे वॉर हो रहे थे। अब देखिए क्या है, एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटिशर ऑन वेस्टर्न फ्रंट। अब वेस्टर्न फ्रंट, अब आप सबको डायरेक्शंस तो पता ही है कि ब्रिटिशर्स जो है, जब आप ये मैप देखते हो, मैंने आपको क्या बोला, पोलैंड पे किया था, तो फ्रांस और इंग्लैंड से भी लड़ाई हो गई थी। तो ये जो फ्रांस है, या फिर ये देखो यूनाइटेड किंगडम है, ये क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से वॉर कर रहे हैं वेस्टर्न साइड से। तो क्या हो रहा है वेस्टर्न साइड से, जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं, वेस्टर्न साइड से जर्मनी में यहाँ से वॉर हो रहे हैं। ठीक है, अब और जर्मनी ईस्टर्न साइड में कर रहा था वॉर। ठीक है, तब जर्मनी को क्या करना था, दोनों साइड में उसे आर्मी को लगाना पड़ा ना, जर्मन हिटलर को। तो अब हिटलर की जो आर्मी है, उसको अपनी आर्मी भी इंक्रीज करनी पड़ी। ठीक है, पर इससे क्या हुआ, जस्ट देखिए, एरियल बॉम्बिंग हो रही थी, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे वेस्टर्न फ्रंट पे, उन पे एरियल बॉम्बिंग हो रही थी, और सोवियत रेड आर्मी ऑन फुल फाइट विद सोवियत रेड आर्मी ऑन ईस्टर्न फ्रंट। ये वॉर जो है टू फ्रंट्स में हो रहा था, वेस्टर्न फ्रंट में भी और ईस्टर्न फ्रंट में भी। ईस्टर्न फ्रंट में वो सोवियत रेड आर्मी रशिया के साथ फुल फाइट पे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वेस्टर्न फ्रंट पे, उन पे बॉम्बिंग ही बॉम्बिंग, बॉम्ब ही बॉम्ब क्या कर रहे थे, गिरा रहे थे, और वहां पे भी उनको आर्मी लगानी पड़ी। Now, meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. और यूएसए को भी क्या करना पड़ा, रेसिस्ट करना पड़ा, कि वॉर में फाइनली आना पड़ा। आप देखते हो वर्ल्ड वॉर वन में भी यूएसए जो है लास्ट में आया था। ठीक है, वो लड़ना नहीं चाहता था, ही ऑलवेज वो शांति ही चाहता था, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहता था। बट यूएसए वर्ल्ड वॉर वन में भी आना पड़ा, और वर्ल्ड वॉर टू में भी क्या है, वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। और जैसे ही यूएस से इन्वॉल्व हुआ, वैसे ही जो है जर्मनी का और ज्यादा जो आप बोल सकते हो कि जो डाउनफॉल था और ज्यादा नजदीक आता गया। जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान भी जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावर में था, वो अपनी ईस्ट में अपनी पावर को कैप्चर किए जा रहा था चाइना के साथ। और जो ये आप थाईलैंड हो गया, आपके फिलीपींस हो गए, बहुत जगह में वो अपनी पावर को एक्सपेंड करे जा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस। ठीक है, अब उसने फ्रेंच इंडो चाइना को भी एक्सपेंड कर लिया था। अब उसने बोला यूएस नेवल बेसिस पे, ठीक है, यूएस का जो नेवल बेस है पर्ल हार्बर के नाम से था, उसने उस पे अटैक कर दिया था जापान ने। एंड व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, एंड आप सबको पता है ट्रिपेटाइट पैक्ट 1940 में साइन हुआ था, उसमें जापान जो था किसके, जापान जर्मनी के साइड में था। तो हिटलर ने बोल दिया कि मैं यहाँ पे वॉर कर रहा हूँ, जापान को बोल दिया कि आप मेरी तरफ से वहां पे आप वॉर कीजिए।
तो जापान ने क्या किया, फाइनली यूएस की जो नेवल बेसिस थी, ठीक है, समुद्र के अंदर उनका एक नेवल बेस था पर्ल हार्बर, वहां पे उसने हिटलर की सपोर्ट से जापान ने वहां पे बॉम्ब गिरा दिया था। एंड ये जो पर्ल हार्बर में जब अटैक हुआ था ना, दिस इज द टाइम जब यूएस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर होना पड़ा, ठीक है। नाउ यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। अब यूएस ने क्या किया था, आप सबने सुना होगा, हिरोशिमा नागासाकी में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे यूएसए ने। तो ये हिरोशिमा और नागासाकी दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जापान की, वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने क्या किया था, एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप कर दिया गया था। बेटा ऐसा बोला जाता है, ये जो एटम बॉम्ब जो डाला गया था ना यूएस पे, ये हिरोशिमा नागासाकी में यूएस के थ्रू, ये इतना मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस था कि वहां पे सब कुछ जो है तहस नहस हो गया। उनकी वहां के लोगों की लाइफ में आज भी जो है उन एटम बम्स के इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जब यूएस ने फाइनली हिरोशिमा नागासाकी में इतनी ज्यादा वो तानाशाही कर ली थी, बहुत सारा सब कुछ नुकसान हो चुका था, सब कुछ इतना बिखर गया था, तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945। 1945 में फिर एंड हो गया। अब जर्मनी के पास भी कुछ नहीं रहा, जापान भी बहुत सारी चीजों से क्या है, जापान भी पूरा तहस नहस हो चुका था। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम जब यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब डाला, ड्रॉप किया, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड किया गया, ठीक है। सो 1945 में बेसिकली आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था, बट अब सब लोग बहुत ज्यादा जो थे, हमने अब स्टार्टिंग के स्टोरी में आते हैं, जब हमने हेलमत की स्टोरी पढ़ी तो आपको बताया था ना, हेलमत के उसने अपने पापा को सुन लिया था, ठीक है, बाय भूल से उसने अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुन ली थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब सब फियर में थे, जो नाजी सपोर्टर्स थे। तो हिटलर ने भी क्या कर लिया था, हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था, ठीक है, और भी जो नाजी सपोर्टर्स थे उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। सो बेसिकली इसका जो एंड था बहुत बुरा था, एंड बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पे लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नाजी वर्ल्ड व्यू, ओके। अभी हमने एक देख लिया कि कैसे हिटलर आता है, हिटलर की एंट्री कैसे होती है, हिटलर जाता कैसा है। अब हम देखेंगे कि जो 1933 में जो हिटलर आए थे, ठीक है, 1933 से 39 में 39-40 तक वो अपने पिनेकल में था, अपने पावर में। तो उस टाइम पे जो लोगों का वर्ल्ड नाजी का वर्ल्ड व्यू था, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सारी चीजें कैसी रही थी, हम वो पढ़ेंगे। कि कैसे उन्होंने रेशियल स्टेट्स को एस्टेब्लिश किया, ज्यूज को उन्होंने क्यों मारा, कैसे मारा, ठीक है। और क्या क्या ऐसी चीजें थी, क्या राइट्स थे, क्या ऐसे जो यूथ थे वो नाजी जर्मनी के, वो क्या सोचते थे। मदरहुड आप बोलते थे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है, वुमेन को कैसे देखा जाने लगा। सो ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। एंड कैसे ऑर्डिनरी पीपल और उनके ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम किया हिटलर ने, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for joining the class and listening to me so patiently. Please do read the chapter and do ask me the questions, or do approach to me if you find any kind of problem or any kind of doubt while reading it, or while if you have any problem in in the explanation portion also, you can ask me, okay. That's all about today. Thank you so much.